Hello dear students of class 6. So today we are going to start with the solar system, the earth and the solar system. We have already done this chapter, but today we are going to revise this chapter with the help of some diagrams. Okay. So the earth and the solar system. Now what is the solar system means? How does the word solar come from? Now the word sol in Roman means sun god. What is called? It's called as sun god. Okay. So anything to related to solar we call this as solar sun. It is related to sun. So now we will start with the solar system. Now many children ask about the galaxy and the universe. So I will say give you a small diagram of the universe. Now see, maybe this is our universe. What is this? This is universe. And in this universe we have numerous galaxies. Different galaxies we have. Okay. So this is universe and this is what? Galaxies. All this galaxy, we live in the galaxy which is called as Milky Way. Okay. So what is called? It is called as Milky Way. The name of our galaxy is Milky Way, which is Hindi in called Akash Ganga. Okay. So this is the universe. In this universe there are different galaxies. Okay. And in the galaxy that we stay is called the Milky Way. And in this Milky Way we have our solar system. Or we can call as our star system. Okay. So you can understand this. Have you got it? That this universe is the whole thing in which we have different galaxies. We stay in Milky Way galaxy, and in this Milky Way we have our solar system. Now solar system consists of different things. Now there are different celestial bodies. Now what are celestial bodies? Now you will see what are celestial bodies. क्या कहते हैं इसको? Celestial bodies. जब हम लोगों ने पहले चैप्टर जब कर रहे थे तब मैंने आपको डेफिनेशन भी दिया था. Celestial bodies. Alright. So, simple. Whatever you see in the night sky is the celestial bodies. Now you can see stars, you can see the moon, you can see different planets. Okay, so how we are going to differentiate with the planets, with the stars and different things? So, simple, very simple to understand. Celestial bodies are of two types. Now moon you can definitely find out moon. हमें सबको पता है चांद क्या है, चांद कैसा दिखता है. चांद तो सबको दिखाई देता है. But there are two types of celestial bodies which I can say. One which emit light. Okay. And which do not emit light. इसका मतलब क्या हुआ? Emit light. जिसके पास अपना लाइट होता है. Do not emit light. जिसके पास अपना लाइट नहीं होता है. बहुत इजी एग्जांपल से समझ में आएगा इसको. जिसके पास अपना लाइट होता है वो है हमारे स्टार्स. जिसके पास लाइट नहीं होता है we can call them as a planet. Okay? Now ये हमें कैसे समझ में आएगा? कौन सा स्टार है, कौन सा प्लैनेट है. आसमान में तो सारी चीजें चमकते हुए हमको स्टार्स जैसे ही दिखाई देते हैं. बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि स्टार्स जैसे बचपन से फ्रॉम द नर्सरी वी ऑलवेज लर्न द फर्स्ट पोएम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स. वेरी इंपॉर्टेंट. ट्विंकल जो ट्विंकलिंग करता है, जिसमें लाइट होती है, वो चमकता है. इट शाइन्स लाइक अ डायमंड. वैसे जो चीजें हम दिखाई देंगे उसको कहेंगे हम स्टार्स. लेकिन वैसे ही स्टार जैसे दिखने वाले कुछ और चीजें भी दिखाई देंगे जो
दिखते तो स्टार जैसे हैं, लेकिन उसका अपना कोई लाइट नहीं होगा, कोई शाइन नहीं होगा, जो डल दिखेगा। कभी कभी थोड़ा सा डिफरेंट कलर में भी दिखेगा, रेडिश कलर में दिखेगा, ग्रीनिश कलर में दिखेगा, वो हो जाएगा हमारा प्लैनेट। अब इससे एक एग्जांपल दूं और, सन। Sun is a star. So that's why sun have so much of light and brightness. So इसी वजह से हमें दिन में कुछ दिखाई नहीं देता. We have the heat and light. That's why it's a star. Sun is called a star. And what is planet? If we see planet like Earth, हमारे पास तो अपना कोई light और heat है नहीं. We get light and heat from where? From the sun. Okay? So that's why the different planets also get light and heat from the sun. That's why they don't have their own brightness, they don't have their light and heat. Okay? So यहाँ पे आ गया हमारे planets. Alright? So ये है हमारा celestial bodies. Now we will come to our solar system. Particularly अपना solar system में हम आएंगे. So सबसे पहले हम देखेंगे sun. Sun is the head of the family. So sun को हम इधर ड्रॉ करते हैं. Let's believe that this is our sun. ये हमारा क्या है? sun है. अब sun के साथ साथ ही आते हैं हमारे 8 important planets. Okay? सबसे पहले आ गया हमारा Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Okay? अब this is what? Sun. उसके बाद आ गया ये, क्या बोला था सबसे पहले? Mercury. This is what? Venus. थर्ड नंबर पे है हमारा Earth. Then is Mars. Then हमारा सबसे बिगेस्ट प्लैनेट आ जाता है, which is Jupiter. Then we come, is called Saturn. Then we have Uranus. And last is Neptune. Okay? So these are our 8 planets. Now all these planets revolve around the sun in its fixed orbit. क्या होता है? ऑर्बिट. ऑर्बिट क्या है? ऑर्बिट अपना पाथ है. इट्स अ पाथ. पाथ मतलब क्या होता है? रास्ता. उसी रास्ते से पूरे सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं ये 8 प्लैनेट्स. घूमते रहते हैं सन के चारों तरफ. ओके? सो और वो ये पाथ से ही घूमते हैं. इस पाथ से ना इधर ना उधर, कभी अपने पाथ से हिलते नहीं है. दे रिवॉल्व अराउंड द सन ऑन इट्स फिक्स्ड पाथ, फिक्स्ड ऑर्बिट. ओके? सो ये है हमारा सोलर सिस्टम. और इन सोलर सिस्टम में एक खास चीज है. लाइक फॉर एग्जाम्पल एक कुछ और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल वन थिंग इज एस्टेरॉइड्स. नाउ मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट आता है जिसको कहते हैं एस्टेरॉइड. एस्टेरॉइड बेल्ट. Now, what is this asteroid belts? Now, some scientists say that maybe millions and millions years ago, maybe some planets hit each other and they formed and they broken into some pieces. एक दूसरे के साथ कुछ planets टकरा के उसके टूट के उसके pieces बन गए थे. And obviously space में वो घूम रहे हैं. और space में कहाँ घूम रहे हैं? ये मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट बन गया है. ये ना इधर से इधर होते हैं ना इधर से इधर होते हैं. ये इन्हीं के बीच में, ये एस्टेरॉइड बेल्ट के बीच में ये घूमते रहते हैं. तो दे आर कॉल्ड सम एस्टेरॉइड्स. सो दे मूव, दे डू नॉट मूव एनीवेयर, दे जस्ट इन दिस प्रॉपर एक बेल्ट जैसा बन गया है और ये इसी के बीच इर्द गिर्द घूमते रहते हैं. नाउ सो वी हैव सीन हियर अप टू हियर सोलर सिस्टम इज क्लियर. हमारे पास 8 planets हैं. They revolve around the sun. Now next we will come of the next thing which is called stars. What is constellation? एक चीज बताया था.
कॉन्स्टेलेशन एंड सेलेस्टियल में अलग दो चीज है, तो इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। कॉन्स्टेलेशन एक अलग चीज होती है, सेलेस्टियल बॉडीज होती है हमारे सारी चीजें जो रात के अंधेरे में हमें दिखाई देता है, वो है हमारा, वो दिमाग में डाल लो, वो है हमारा सेलेस्टियल बॉडीज। कॉन्स्टेलेशन ऑफ स्टार्स ना, कुछ स्टार्स जो है हमें रात में ऐसे ग्रुप जैसे फॉर्म होते हैं। ओके, नाउ सी 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये एक कॉन्स्टेलेशन है। तो इसको, ऐसे कॉन्स्टेलेशन को हम कहते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स। देखो स्टार्स तो बहुत सारे दिखते हैं हमारे आसमान में, लेकिन कभी कभी देखना कुछ झुंड बना के साथ में रहते हैं ग्रुप में, उसको कहते हैं हम कॉन्स्टेलेशन ऑफ स्टार्स। क्या कहते हैं हम इसको? कॉन्स्टेलेशन ऑफ स्टार्स। कॉन्स्टेलेशन ऑफ स्टार्स, और वी कैन से ग्रुप ऑफ स्टार्स टुगेदर फॉर्म अ कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, ऐसे एक ग्रुप को हम कहते हैं सप्तऋषि। ओके, ये हमारे हिंदू शास्त्र से लिया गया है। सो दिस ग्रुप इज कॉल्ड सप्तऋषि। एक कॉन्स्टेलेशन आपको बहुत इजीली दिखाई देगा जहां पे आपके 3 स्टार्स 1 2 3 ऐसे 3 स्टार रेगुलरली हमें दिखाई देगा। उसी के सीधा लाइन से चले जाओगे तो हमारा आएगा नॉर्थ स्टार। सो वी विल सी हाउ इज दिस डन नाउ। वी विल हैव यू सीन द नॉर्थ स्टार? रात के अंधेरे में सबसे ज्यादा चमकने वाला नॉर्थ स्टार होता है। दिस इज नॉर्थ स्टार विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पोल स्टार। ओके, नॉर्थ। पहले के जमाने में इस नॉर्थ स्टार इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई यू नो? पहले के जमाने में जब हमारे पास घड़ी नहीं होती थी, हमारे पास कोई कंपास नहीं होता था, कोई चीजें दिखाई हमें समझ में नहीं आता था लोगों को अंधेरे में कौन से डायरेक्शन में जाना है, तब लोग क्या करते थे? दे यूज्ड टू कीप देयर हैंड लाइक दिस इन द नॉर्थ स्टार एंड दे यूज्ड टू पॉइंट दैट दिस इज नॉर्थ। अब अगर नॉर्थ समझ में आ जाता है तो उसका बस उल्टा साउथ, ईस्ट, वेस्ट लोग अपने आप देख सकते थे। सो दिस वर्क एज अ कंपास। सो ये नॉर्थ का डायरेक्शन बताते हैं, और नॉर्थ का डायरेक्शन हमें जैसे पता चल जाता है, बाकी के सारे डायरेक्शंस भी हमें पता चल जाते हैं। सो देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेलेशन, उस्ट्रा मेजर, उस्ट्रा माइनर, ऐसे बहुत सारे अलग अलग कॉन्स्टेलेशन, मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स हमें आसमान में देखने को मिलता है। नाउ हम लोगों ने बहुत सारी चीजें बात की। नाउ डू यू नो इन आवर सोलर सिस्टम देयर आर 8 planets, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे प्लैनेट्स हैं। नाउ द थिंग इज दिस 4 प्लैनेट्स जो हमारे 1 2 3 4 सन से जो सबसे करीब के ये जो 4 प्लैनेट हैं, फर्स्ट दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। क्या कहते हैं हम इसको? टेरेस्ट्रियल planet. Okay, all right, and this group is called giant planet. Giant planet का नाम देते हैं because this planets, जुपिटर से जो planets, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये जो है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये जो प्लैनेट्स है ये बहुत ही बड़े साइज के, बहुत ही बड़े प्लैनेट हैं। और यहां से मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ठीक है, इनको हम देंगे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट का नाम, और इनको हम देंगे जायंट, मतलब बिग प्लैनेट, जिसमें से पहले 2 प्लैनेट्स जो हैं दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, मोस्टली ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैसेस, एंड लास्ट 2 जो प्लैनेट है, ये दोनों प्लैनेट, दिस आर मेड अप ऑफ आइस। पहली बात है सूरज से कितना दूर है देखो, तो सूरज की तो कोई रोशनी इन पे ज्यादा पड़ती है ही नहीं, तो इसी वजह से ज्यादातर इनका जो क्या है आइस, मतलब इसमें गैस डोमिनेटिंग है, इसमें आइस ज्यादा डोमिनेटिंग है। और बाकी सारे प्लैनेट्स जो सूरज के बिल्कुल पास में, मरकरी,
सबसे पास में है, इसी वजह से ये हमेशा रेडिश दिखते हैं ये प्लैनेट्स। सो ऐसे करके धीरे धीरे करके हम सारे प्लैनेट्स को हम लोगों ने देखा। नाउ नेक्स्ट इज वी कैन सी, सो वी आर डन विद दिस, हैव यू अंडरस्टूड एवरीथिंग? सो हम लोगों ने क्या क्या किया, हम लोगों ने सोलर सिस्टम देखा, सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं देखा। नाउ देयर वाज अनदर प्लैनेट in the solar system which was called as the ninth planet, which was called as Pluto. But Pluto is no more a planet right now because scientists ने बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ, नेपच्यून एंड प्लूटो के बीच में भी एक बेल्ट आता था, so they thought that this belt was very big and the Pluto is so small that it could not be compete with other planets, or due to the mass area is very small, to be called as a planet there should be 50% of the mass of the land or something, so that's why Pluto was called as dwarf planet or planetoids, अब कह सकते हो अलग। सो अभी ये हमारे और ये सोलर सिस्टम का, हमारा जो सोलर सिस्टम का जो ऑर्बिट है इसको छोड़ के बाहर निकल गया है ये प्लैनेट। So that's why Pluto is no more considered as a planet. Now we have just 8 planets. Now, two very important things that I'm going to do. Now first, this is Sun and this is Earth. It revolves around the, you see this orbit? So Earth is revolved around and then takes its position and it takes 365 days. एक साल लगते हैं हमें. This process is called revolution. Alright? This is what? This is revolution. ये सन है हमारा और ये हमारा अर्थ है, इसको पूरे सन को घूमने के लिए 365 डेज लगता है, मतलब एक साल लग जाता है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं, जो घूमने वाला फिक्स्ड ऑर्बिट में जो घूमते रहते हैं, इसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन। 365 डेज लगते हैं इसको पूरा रिवॉल्व करने में, एक पूरा चक्कर काट के अपने पोजीशन में आने के लिए इट टेक्स 365 डेज। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट ऑल्सो रेवोल्यूशन चेंजेस इन सीजन। सीजन चेंज जो है रेवोल्यूशन की वजह से ही होता है। हम एक सीजन में थोड़ी रहते हैं। वी हैव समर, वी हैव विंटर, वी हैव रेनी सीजन, वी हैव ऑटम, स्प्रिंग। ये सारी चीजें क्यों होती है? ये रेवोल्यूशन की वजह से हो रही है। ओके, नाउ रेवोल्यूशन तो ठीक है, लेकिन अर्थ अपने में भी तो रिवॉल्व कर रही है। सूरज के साथ साथ वो अपने में भी गोल, जैसे एक क्या कहते हैं, एक लट्टू जैसे घूमना, वो खुद भी घूम रहे हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं रोटेशन। When अर्थ इज मूविंग, अर्थ भी अपने इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, पूरा रिवॉल्व करती है अपने ही, अपने एक्सिस में घूमती रहती, गोल 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 घूमते रहते हैं। और इससे क्या होता है, हमारा डे होता है एंड नाइट होती है। दिन होता है, रात होता है। कहने का तो हम कहते हैं सूरज उठ रहा है, सूरज डूबता है, लेकिन व्हाट इज डूइंग? अर्थ इज रोटेटिंग। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस विच कॉजेज डे एंड नाइट, जो 24 आवर्स के लिए होता है। ओके, हमेशा याद रखना, रोटेशन मतलब अपने आप में अर्थ घूम रही है रोज, और रेवोल्यूशन है पूरे सन के चारों तरफ घूमना, उसको कहते हैं हम रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज आवर वेरी फेवरेट मून। ओके, नाउ जस्ट लाइक द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, अर्थ के एक फ्रेंड जैसा अर्थ के भी चारों तरफ ये मून घूमता रहता है। दिस इज अर्थ एंड दिस इज मून। जैसे अर्थ सूरज की तरफ चारों तरफ घूमता रहता है, वैसे मून भी अर्थ के चारों तरफ घूमती रहती है। एंड मून का कहते हैं, मून का फुल एरिया इज 1/4 ऑफ द अर्थ,
मतलब अर्थ से काफी छोटा है मून. ओके, उसका 1/4 साइज डायमीटर है मून का. ओके, सो दिस are the things that we going to see. Now there are various things. Moon, there is no moon day, there is full moon day. Okay, so all this happens when the moon revolve around the earth. Now here we are done with the moon. And what is moon? हम लोगों ने तो ये वो बताया ही नहीं. मून है क्या? मून है हमारा अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट. What is moon? Moon is a natural satellite. Human made satellite आप लोगों ने सुना होगा. बहुत सारे human made satellites हैं. अभी human made satellites चारों तरफ घूमते रहते हैं, बहुत सारे स्पेस में जाते हैं. ये सारे जो है ये human made है. But moon is our natural satellites which move around the earth. So we have seen this particular topic. One more thing which is left, which is you call as meteoroids. The meteoroids क्या है? Meteoroids are also small elements which revolve around, which you can find in front of the sun. ये sun है और sun के और कह सकते हैं हमारे जहां से प्लैनेट स्टार्ट होते हैं उनके सामने सामने ये जगह पे meteoroids घूमते रहते हैं. We have meteoroids built here. Meteoroids are the elements which sometimes drop in the earth, sometimes come nearer to earth, and in a friction of light and in friction of seconds it's cooled down, because we have atmosphere, we have many gases around, so it cools down. So this part is called meteoroids. So we saw many things. Now we will come to the summary of this chapter. Now हम summary में आने से पहले क्या देख लेंगे? We will see. We have seen so many things. Now we have seen what is Earth. We have seen the solar system. We have seen galaxies, universe. We have seen the stars, moon, meteoroids, asteroids, different planets. Okay. So these are the whole solar system. Okay. Now, so we have end this chapter. Now, when you will revise this chapter, do consider all the important points and learn it. Okay? And try to see as many as videos you can so that you will understand it better. So have a nice day.